Hello, happy students. Today our topic is Python programming, and this is Python programming part third. In this lecture, we are going to discuss about operators, input and output function of Python programming, and some programs related to Python operators. So first one is logical operators. So what are the logical operators? There are three operators which falls in category of logical operators, and these are or, and not, also called as logical or, logical and logical not. So here these are the three symbols of logical operators: and, or, and not. And what is the difference among them? First of all, let us talk about or and and. So or, as the name suggests, or, so there is a choice between two conditions. If only one condition is true, if at least one condition is true, then statement will gives you a result true, otherwise it will give you a result false. But in the case of AND operator, if until and unless all the conditions are true, only then the result is true, otherwise result will be false. And third one is not, as the name suggests, not. It basically reverses the logical statement. If a statement is true, then um, using not operator it becomes false, and if it is false, then it will be true using not operators. So these are the three operators: or, and, or, not, also called as logical or, logical and, logical not. स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके थ्री हैं इसमें: और, एंड, नॉट, जैसा मैंने बताया अभी आपको। तो जब कभी भी हमें कंडीशंस को सेपरेट करना होता है तो हम इनमें से बेसिकली एंड और को यूज़ करते हैं, और जब हम किसी कंडीशन को नेगेट करना होता है, रिवर्स करना होता है, तो हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कंडीशन है आपकी, मान लीजिए सपोज कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 60% है और बिलो 70% है, तो आपको उसके लिए कुछ प्रिंट कराना है, जैसे मार्वलस परफॉर्मेंस या व्हाटएवर कुछ इस तरह का। तो आप उसके लिए एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आप और यूज़ करते हैं तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोग्राम में क्या कंडीशंस हैं और कंडीशंस को किस तरीके से सेपरेट करना है। बेसिकली लॉजिकल और ऑपरेटर्स कंडीशंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और आप सेपरेट एंड और दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। नॉट से जब किसी भी कंडीशन के आगे नॉट लिख दिया जाता है, नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, तो कंडीशन नेगेट हो जाती है। इट मीन्स रिजल्ट जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ट्रू रिजल्ट है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा आपका। बाकी इन चीज़ों को हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, ये ऐसा ही है जैसे जनरल लाइफ में यूज़ होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अटेम्प्ट क्वेश्चन 1 एंड 2, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं फुल मार्क्स सिक्योर करने के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पर हाफ मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, या तो आपको मार्क्स मिलेंगे या मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आपका और से सेपरेट किया है तो आपको चॉइस है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो एंड और का ये वर्क है। बाकी नॉट ऑपरेटर में कंडीशन को नेगेट कर देते हैं। तो दीज आर द थ्री ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स: और, एंड नॉट। Second slide is related to Python input, output, and import. Now, second question raised in our mind that how we can take input, output, or import a particular library in Python programming language. So let's talk one by one. First of all, for output, अब आपको output कैसे लेना होगा? How can you take output? So we can take output using print function. It is a print function. Using print function, whatever you want to print, just write print this function and write within parentheses, within a single quote, whatever you type, it printed as it is, as you type in it. For example, this is a statement, the sentence is output to the screen. So first of all, just write print, then sign of parenthesis, and then singular double quote, whatever you want,
आपकी चॉइस है, यहाँ पर आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, डबल भी यूज़ कर सकते हो, नो मैटर अबाउट इट. And then write just a statement within these double quotes or single quotes. Here the statement is, this statement sentence is output to the screen. So after the execution of the statement, the output look like this. The sentence is output of the screen. It means as it is as print as given in print statement. So print एक function है, और function क्या, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसे हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वहाँ पर. और इसमें जो भी आप डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी. अगर कोई नंबर भी लिखेंगे तो उसको भी एक स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने उसे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखा है. नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 5. देयर इज स्मॉल प्रोग्राम a इज इक्वल टू 5, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज a. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम किसी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं. आंसर यस, वी कैन ऑल्सो प्रिंट अ वैल्यू विद अ स्ट्रिंग. सपोज a इज इक्वल टू 5. यहाँ पर हमने a को 5 वैल्यू असाइन कर दी. ये इक्वल ऑपरेटर नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर. इट मीन्स 5 इज असाइन टू a. मैथमेटिक्स में इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल असाइन होगा आपका पाइथन प्रोग्रामिंग में. तो 5 वैल्यू असाइन हो गई है a को. अब हमने, अगर हम एक ही वैल्यू प्रिंट कराना चाहें विद सम मैसेज, then this is possible using print statement. Then just write print, after that write a message within a single or double quote, whatever you want. So here the message is, the value of a is, and after that there is small comma, sign of comma, and then name of variable. जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की, whatever the value of a, here variable is a, will be printed with the statement the value of a is, and after the execution of the statement the output is the value of a is 5. So that is the answer. तो हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना है और कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आप उसे सिर्फ सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखिए. प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसके साथ कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो वैल्यू वेरिएबल को कॉमा करके आप सेपरेट कर दीजिए, वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा. आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उस वेरिएबल की, जो भी होगी, व्हाटएवर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी. आप सभी इसके बारे में आई थिंक पहले से जानते होगी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट IP 11th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत उन्होंने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ ये सब था ऑलरेडी, और ये सब सिलेबस में 11th में भी है. तो आगे चलते हैं. तो आपने इसमें देखा कि हम आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, और प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं. प्रिंट एक फंक्शन है, और फंक्शन की पहचान है पैरेंथेसिस साइन. इस पैरेंथेसिस में सिंगल या डबल कोट के अंदर जो भी कुछ मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है. और अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो कॉमा करके हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और वैल्यू प्रिंट हो जाती है. तो ये 2-3 बातें थी इसके साथ. अब नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट के लिए क्या करना होगा आपको. एक क्वेश्चन और ये आता है, इनपुट के लिए क्या करना होता है. इनपुट के लिए एक फंक्शन आता है और फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन. तो इनपुट कराना होता है. अब इनपुट कराना क्यों होता है. इनपुट इसलिए कराना होगा क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमसे वैल्यू प्रोग्राम मांगेगा. ऑफ कोर्स वैल्यू तो मांगेगा. जैसे फॉर सपोज आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने एक वेरिएबल लिया SI, जिसमें हमें आंसर स्टोर करना है. और हम जानते हैं कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T. यहाँ P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट है, T टाइम है, अपॉन 100 से डिवाइड करते हैं. ऑफ कोर्स ये सबको पता होगा. लेकिन यहाँ जब तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम पता नहीं होगा, तब तक आप निकाल नहीं सकते आप सिंपल इंटरेस्ट को. तो इनपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है बेसिकली इनपुट देने के लिए. तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट कराना होगा, और रेट इनपुट कराना होगा, और टाइम इनपुट कराना होगा, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, देन आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आउटपुट कराना होगा. देखेंगे एक प्रोग्राम में आगे इसको. उससे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक और है कॉन्सेप्ट, और वो है कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं, वी वांट टू राइट मोर देन वन प्रिंट स्टेटमेंट, देन हम ये देखते हैं कि जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो उसके जस्ट आफ्टर आएगा. मतलब एक लाइन का गैप होगा, उसके बाद जस्ट कंटिन्यूशन में ही नहीं रहता. इसका मतलब नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड हो जाती है इसके अंदर. तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है. तो ऐसा क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम
न्यू लाइन से ना लिख के उसी लाइन में कुछ एक्सटेंड करना चाहें या कोई और सिंबल से सेपरेट करना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है? आंसर यस, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका एक सिंटैक्स है। आमतौर से स्टूडेंट इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मेट मांगा जाता है कि पर्टिकुलर आपको उसी फॉर्मेट में आंसर को देना है। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक सही होने के साथ साथ फॉर्मेट में किस तरह से आंसर दिया जाए। तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए। प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको काम ये करना है कि आपको ऑब्जेक्ट सेपरेटर को एससीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंड, ये 3 मेन एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी 2 एट्रीब्यूट्स और हैं, फाइल और फ्लश, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो वैल्यू जो आपको प्रिंट करानी है। एंड जिससे आपको एंड करना है, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन होता है। नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन यूज़ होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। और एक है सेपरेटर एसीपी, और एसीपी सेपरेटर का मतलब होता है कि किससे आपने सेपरेट किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस होगा। So app uploader is used between the values, it default into a space character। तो स्पेस कैरेक्टर से आपका वैल्यू को सेपरेट करता है। तो अगर आप किसी और से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो वो ऑपरेटर को आप लिख सकते हैं, उस वैल्यू को लिख सकते हैं सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर, तो उससे ये सेपरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से एंड करना चाह रहे हैं किसी और से तो यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो एंड हो जाएगा। यहाँ पर एक और है फाइल sys out, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में ये दे रखा है इसमें कि ये जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्क्रीन है, ये आपका सिस्टम का आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं आपको। और फ्लश की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहेगी। इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखते हैं। ये वैल्यूज़ हैं प्रिंट 1 2 3 4। ये वैल्यूज़ आपको प्रिंट करानी है। टू प्रिंट दीज वैल्यूज जस्ट राइट प्रिंट स्टेटमेंट एंड विद इन parenthesis sign just write 1 2 3 4 all are the values, not a string. Remember, this is not a string, these are the values. So after execution of the statement, these all values are printed 1 2 3 4, and here one thing is very common, that 1 2 3 and 4 are separated by a space, because by default values are separated by a space. And for next statement, if there is another statement, print statement, then it goes to the next line. अब आप देखिए इसमें आपने क्या किया, यहाँ आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर आपने एससीपी को ऑपरेटर को यूज़ किया है। तो एससीपी ऑपरेटर को यूज़ किया और वैल्यू दिया आपने एस्टेरिस्क। तो होगा क्या कि अब यहाँ पर स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस था, जिससे स्पेस से सेपरेट हुआ था, वो स्पेस से सेपरेट ना होके एस्टेरिस्क साइन से सेपरेट होगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4। और ऐसे ही आपका प्रिंट स्टेटमेंट में देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और फिर इसके बाद आपने देखा एससीपी और यहाँ पे हैश सिंबल दिया है आपने। और इसके बाद आपने एंड किया है एम्परसेंड साइन के साथ। तो अब लाइन एंड जो होगी नेक्स्ट लाइन से नहीं होगी, बल्कि एम्परसेंड साइन के साथ एंड होगी, जैसे इसमें हुआ है एम्परसेंड साइन के साथ एंड हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट का। तो ये आपके ऊपर है कि आप किससे सेपरेट करना चाहते हैं, लाइन को किससे एंड करना चाहते हैं। कभी कभी पर्टिकुलर किसी एग्जाम में फॉर्मेट में कुछ आंसर मांगा जाता है, तो वहाँ फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट लाइन चेंज करनी है या लाइन चेंज नहीं करनी है या किससे सेपरेट करना है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग इनपुट। अब इनपुट की बात करते हैं। आउटपुट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आउटपुट के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में आपको प्रिंट एक फंक्शन है, और पैरेंथेसिस साइन के अंदर, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, और अगर आपको सेपरेटर चेंज करना है तो उसके लिए एक ऑपरेटर है आपका एससीपी, उसकी वैल्यू आप जो भी देंगे उससे वो सेपरेट हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन होता है एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद, तो अगर उसे भी चेंज करना चाहें तो उसके लिए एंड है END, और उसमें आप जो भी वैल्यू देंगे उससे स्टेटमेंट आपका एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इनपुट पाइथन इनपुट की। इनपुट कैसे दिया जाएगा? तो सबसे पहले आपको इनपुट लिखना होता है, और इनपुट लिखने के बाद आपको
इनपुट भी एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन यहाँ भी होगा, और सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जैसा भी आपका है वैसा आप मैसेज को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है इनपुट एंटर ए नंबर, तो एंटर ए नंबर, कोई भी आपने नंबर दिया तो आपसे नंबर मांगेगा जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे। ये इंटरेक्टिव मोड में है, और इंटरेक्टिव मोड की पहचान क्या है? इंटरेक्टिव मोड की पहचान ये है कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट का साइन आ जाएगा, ये ट्रिपल एरो का साइन होगा, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। और इंटरेक्टिव मोड में जैसा हम जानते हैं वी कैन एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, so that is a limitation of input statement. So after execution of that statement, a message will be printed, enter in a number, and the computer asks you to give a number, and the number is 10. So 10 is the input for this program. तो इस तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये थी इसके अंदर कि आपने इसमें सेकंड लाइन में लिखा हुआ नम और सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ 10। अब यहाँ पर 10 क्या है? 10 क्या एक नंबर है? नहीं, 10 एक नंबर नहीं है, 10 एक हम स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। क्यों स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे? क्योंकि सिंगल कोट के अंदर दे रखा है। सिंगल या डबल कोट के अंदर अगर कुछ भी हम नंबर भी प्रिंट करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, ना कि वो एक नंबर रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटर फ्लोट में, तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आपका स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है इनपुट। अगर हमें इंट या फ्लोट लेना है तो उसके लिए हमें इंट या फ्लोट को इंटेंशनली लिखना होता है, जैसे कि ये पता चल सके कि इनपुट का टाइप क्या है। तो इंटीजर के लिए हम लिखते हैं इंट, और फ्लोट का मतलब है डेसिमल वैल्यू, जैसे 10.01, 13.2, इस तरह से जो भी वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट वैल्यूज़ कहलाती हैं। और ये इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग क्या है? इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग ये डेटा टाइप्स हैं। और डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज। डेटा का टाइप क्या है? डेटा किस तरह का है? तो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं 3, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग। डेटा टाइप को हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि डेटा टाइप का मतलब टाइप ऑफ डेटा से है कि वो इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग है, या फिर वो आपका एक फ्लोट वैल्यू है। तो हमें इंट लिखना पड़ता है, हम सिंपल इनपुट नहीं देते। जैसे आपने लिखा इंट 2 और 3, तो सिंगल कोट्स के अंदर इंट 2 और 3 लिखेंगे तो एरर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आपने यहाँ सिंगल कोट दे रखा है, तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ ये कन्वर्ट नहीं होगा। और अब बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स की। कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं तो यहाँ आपके प्रोग्राम्स में आपको इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक प्रोग्राम की। बेसिकली इज अ प्रोग्राम in which we have to add two numbers. So number 1 is 10.5 and number 2 is 11.6. ये आपने यहाँ पर इसे assign कर दी वैल्यू 10.5 11.6. Remember that these are the fixed values. So answer is always same. आप जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम, आंसर आपका सेम आएगा क्योंकि वैल्यू यहाँ फिक्स है। और आपने फिर क्या लिखा? sum1 is equal to num1 plus num2. sum1 की जो भी वैल्यू होगी वो आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट को देखा। जब हम प्रिंट स्टेटमेंट जब इसमें हमने जो भी लिखा है तो वो ये लिखा है कि ये एक और अलग फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम प्रिंट स्टेटमेंट को दे सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि आपने लिखा सम ऑफ 0 and 1 is 2। अब ये 0 1 2 क्या है? तो एक्चुअली एक फंक्शन है जिस फंक्शन को कहा जाता है फॉर्मेट। अगर आप आंसर को पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट के अंदर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। उसे यूज़ करने का मेथड ये है कि आपको डॉट फॉर्मेट लिखना पड़ता है, और डॉट फॉर्मेट लिखने के बाद जो भी वेरिएबल आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं उन वेरिएबल के नेम, जैसे हम यहाँ पर 3 वेरिएबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं, num1, num2 और sum1। अब num1 इसकी हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो काउंटिंग num1 की स्टार्ट होगी 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं करते, और num2 की 1 से और sum1 की 2 से। तो जहाँ कहीं भी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 लिखा है एक्चुअली वो num1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर सम ऑफ 0 तो इट मीन्स वो num1 की वैल्यू प्रिंट होगी जो होगा आपका 10.5। और जब हम num2 को प्रिंट कराएंगे तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और 2 sum1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जहाँ कहीं भी 2 लिखा होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो sum1 की वैल्यू वहाँ प्रिंट होगी। तो 0 की जगह यहाँ प्रिंट होगा 10.5, 1 की 1 यहाँ प्रिंट होगा आपका 11। ये पोजीशंस हैं और इसको हम एड्रेस भी बोल सकते हैं। और
टू की जगह प्रिंट होगा आपका समवन, तो आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये सिर्फ लुक एंड फील के लिए है, इसका कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेट है जिसमें हम अपने आंसर को प्रिंट करा सकते हैं एक अच्छे तरीके से। तो अगर आप आंसर को प्रिंट कराना चाहें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो ऐसे भी आंसर को प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए, आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर 2 या 3 चीज़ें यहाँ पर समझ ली होंगी। अगर हमें सिंपली एक मैसेज ही प्रिंट कराना है तो, या स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे। और अगर हमें प्रिंट कराना है कोई वेरिएबल की वैल्यू, तो हम कॉमा करके एक वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे। और यहाँ पर एक अगर हमें सेपरेट करना है स्पेस की जगह किसी और से, तो एससीपी यूज़ करेंगे। अगर लाइन को एंड करना है, नेक्स्ट लाइन नहीं चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, तो हम उसके लिए एंड यूज़ करेंगे। और आप पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन है, उस फॉर्मेट फंक्शन को आप यूज़ कीजिए इस तरीके से। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वहाँ पोजीशन दे रखी होती है, उसी ऑर्डर में आपको काउंट करना होता है। तो ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सम ऑफ 10.5 and 11.6 is 22.1। आई थिंक समझ में आ गया हो। एक बार आप इसको करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा इसके बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अलग अलग फॉर्मेट में जब आप प्रिंट करना सीख जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आंसर किस तरीके से दिखाई देगा। प्रोग्राम का लॉजिक तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ प्रोग्राम को आउटपुट को आपको शो कैसे करना है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आंसर को चाहिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या क्या है जिसके थ्रू हम आंसर को पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद ये प्रोग्राम और है। इस प्रोग्राम में बेसिकली प्रोग्राम 2 है, इसमें 3 नंबर्स को इनपुट करना है, उनका सम लेना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम, अब नंबर्स फिक्स नहीं है यहाँ पर, अब चूँकि नंबर फिक्स नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इनपुट मैथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया नंबर, और नंबर के बाद लिखा इंट, क्योंकि जो भी उसका टाइप है पहले टाइप लिखना पड़ेगा। इंटीजर टाइप है तो इंट लिखना पड़ेगा, फ्लोट है तो फ्लोट लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, तो बाई डिफॉल्ट होता है। तो आपने लिखा इंट और फिर इनपुट और एंटर नंबर 1। तो यहाँ पर एक नंबर मांगेगा आपसे मैसेज के साथ, एंटर नंबर 1, और आपको वैल्यू इंटीजर ही देनी होगी। अगर आप इंटीजर नहीं भी देते हैं तो वो इंटीजर ही कंसिडर की जाएगी, फ्लोट नहीं कंसिडर की जाएगी। आपने 10.1 लिखी है तो वो 10 ही कंसिडर होगा। और सेकंड है आपका एंटर नंबर 2, दैन आपका एंटर नंबर 3, और उसके बाद आपने सम लिया नंबर प्लस 3। और यहाँ एक्चुअली आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है और ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस। प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, फॉर्मूला वगैरह सम नंबर प्लस नम प्लस नम 2। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 नंबर्स का सम चाहिए। उसके बाद आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट देना है, नम 1 नम 2 नम 3, आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आपने लिखा सम, सम को प्रिंट कराएंगे तो आंसर्स प्रिंट हो जाएगा, सम इज सम। तो 3 वैल्यूज हो जाएंगे 12 13 14, और ये नंबर्स आ जाएंगे और उनके साथ उनका सम प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन है, ये देखिए यहाँ पर आप, ये देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन है, ये पैरेंथेसिस का साइन नहीं आएगा। एक्चुअली जब आप एनाकोंडा पर प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वहाँ आपका थोड़ा डिफरेंस आता है। एनाकोंडा में बेसिकली ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं। पाइथन का बेसिक वर्जन के अलावा आप एनाकोंडा को भी यूज़ कर सकते हैं। एनाकोंडा आपका एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस पाइथन की सभी लाइब्रेरीज ऑलमोस्ट, जो आपके मोस्टली जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको सपोर्ट करता है, जैसे नमपाई है, डेटा फ्रेम है, मैटप्लॉटलिब है। तो और अगर आपको इन पर काम नहीं करना, बेसिक वर्जन पर काम करना है, तो आप सिंपली पाइथन 2.7 या पाइथन 3.3 या पाइथन 3.7 को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था कि थोड़ा सा डिफरेंट रहता है आपका आउटपुट में, अगर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही, एनाकोंडा के थ्रू ही आउटपुट लिया गया, वहाँ प्रोग्राम किया गया है। जब लैब होंगी तो मैं आपको ऑनलाइन इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ओपन करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि आपने ये प्रोग्राम था, ये दोनों अलग अलग लाइन में मैसेज प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें कुछ आइडिया है कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाने के लिए अब ये चीज़ समझ लीजिए कि रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। आपको ये समझना है कि इनपुट क्या चाहिए, सेकंड
फॉर्मूला क्या इम्प्लीमेंट करना है, थर्ड आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। दीज थ्री आर द थ्री बेसिक थिंग्स फॉर ए प्रोग्राम्स। तो रेक्टेंगल की बात करते हो, आप भूल जाइए एक मिनट के लिए कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं इसमें, और सोचिए कि आप मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है सपोज। तो सबसे पहले अगर आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला आप सोचेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला है, तो आपको पता चला कि रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन से। तो एक बात क्लियर हो गई। फिर आपने फॉर्मूला लिखा, आपने लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, सफिशिएंट है, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको एरिया तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पता नहीं होगी। तो लेंथ और ब्रेड्थ को पता होना कंपलसरी है, तो वहाँ कैसे करेंगे आप, तो ऑब्वियसली आप लेंथ और ब्रेड्थ क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, सर्च करेंगे और वहाँ से वैल्यू को पिक करेंगे, और लेंथ और ब्रेड्थ मिलने के बाद आप वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में, और पुट करने के बाद आपका एरिया निकल जाएगा, और जो भी एरिया होगा उसके आगे आप मैथमेटिक्स में आंसर लिख देते हैं। ये मैं मैथमेटिक्स का प्रोसीजर बता रहा हूँ। अब सेम प्रोसीजर फॉलो होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, सेम। तो हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है हमको इनपुट के लिए 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको ये भी चाहिए कि इनका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप तो वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, एंड ऑफ फ्लोट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब एरिया निकालने की बात आती है तो फिर हम फ्लोट ही वैल्यू प्रेफर करते हैं। तो यहाँ हम फ्लोट लेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा। तो लिखेंगे लेंथ, वेरिएबल का नेम लेंथ ले लिया, और लेंथ क्या लेंगे क्योंकि एक आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करता है, और आइडेंटिफायर के रूल्स जैसे मैंने बताए थे, कोई भी आप नेम ले सकते हैं, नेम ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, नंबर से स्टार्ट हो सकता है आपका, इवन आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर्स कॉम्बिनेशन में आ सकता है, स्मॉल एट से स्मॉल जेड नंबर्स, और अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर और लेटर से स्टार्ट होता है, नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई अदर सिंबल नहीं होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो सफिशिएंट है लेंथ ब्रेड्थ, और एक वेरिएबल और लिया एरिया, क्योंकि इसमें आंसर को स्टोर करना होता है। तो याद रखिएगा जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें किसी प्रॉब्लम में जितने इनपुट चाहिए होता है उससे हम एक इनपुट ज़्यादा लेते हैं कम से कम, क्यों, क्योंकि हमको आंसर को भी शो करना है। अगर आउटपुट एक है तो एक इनपुट और ज़्यादा ले, एक वेरिएबल और ज़्यादा लेंगे, और अदरवाइज जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब चूँकि यहाँ सिर्फ एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर एरिया के लिए एक और एरिया ले लिया। तो लेंथ और ब्रेड्थ सबसे पहले लिखेंगे, और लेंथ और ब्रेड्थ लिखने के बाद आपने यहाँ पर इनपुट करा दिया फ्लोट टाइप की वैल्यू, इनपुट एंटर लेंथ, फ्लोट इनपुट ब्रेथ। इसके बाद आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जब आपकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर, तो फिर आपको उसे प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, जो भी होगा एरिया प्रिंट हो जाएगा। ये मैं अभी आप थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि स्ट्रिंग के साथ वैल्यू को किस तरह से प्रिंट कराया जाता है। एरिया में आंसर स्टोर्ड है, तो जब कभी भी इस मैसेज के साथ प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कमेंट की फॉर्म में दे रखा है, तो एक्चुअली स्टेटमेंट ये नहीं है, जिसके जस्ट अबव स्टेटमेंट है उसके थ्रू हमने आंसर को हम प्रिंट कराना है। तो वो इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी दिखाई दे रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है कि आप स्ट्रिंग और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन को कैसे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है आप डबल कोट्स के अंदर लिखिए, जैसे आपको एज इट इज़ मैसेज प्रिंट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, उसको डबल कोट के अंदर लिखिए, और फिर उसके बाद अगर वेरिएबल प्रिंट करना है तो कॉमा लगाइए, वेरिएबल का नाम लिखिए जैसे इसके अंदर है। फिर उसके बाद अगर कोई और स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो फिर कॉमा लगाइए, फिर डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लिखिए, फिर वेरिएबल का नाम प्रिंट करना है तो कॉमा लगाइए, फिर वेरिएबल का नाम लिखिए, और फिर कॉमा लगा के फिर कोई आपका स्ट्रिंग, और फिर कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम। तो ये याद रखिएगा कि जब कभी भी हमें वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर कर लिखने के बाद कॉमा करके वेरिएबल का नाम, और उसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो फिर से एक कॉमा लगेगा। तो इस तरीके से मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो आंसर आपका ये दिखाई देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 67.0 एंड ब्रेड्थ 78.0 इज 5226.0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.0 में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने वैल्यू फ्लोट ली है। तो ये प्रोग्राम था एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। तो इम्पॉर्टेंट बात जो हमने इसके अंदर सीखी वो ये थी कि जब कभी भी हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो या प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कितनी इनपुट रिक्वायर्ड है और आउटपुट में क्या मांगा गया है हमसे और उसका फॉर्मूला क्या है।
बात इम्पोर्टेंट और है कि जब कभी भी हम ये देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, तो हम मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी से उसको पाइथन की टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे प्लस ऑपरेटर है वो मैथमेटिक्स में भी सेम यूज़ होता है और पाइथन में भी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, स्टार का साइन यूज़ करते हैं एस्टेरिक, और जबकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, डॉट यूज़ करते हैं या फिर क्रॉस यूज़ करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम एक और लास्ट प्रोग्राम था छोटा सा, और इस प्रोग्राम को और देख लेते हैं। ये एरिया ऑफ सर्किल है, तो एरिया ऑफ सर्किल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें ऑब्वियसली इनपुट तो सिर्फ रेडियस ही चाहिए हमको निकालने के लिए, क्योंकि अगर हमें एरिया निकालना सर्किल का, तो आर अगर रेडियस पता है तो हम एरिया निकाल लेंगे, तो हमें सिर्फ आर को इनपुट कराना होगा। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा एरिया इज इक्वल टू 3.1416 इंटू आर। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए आपको दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हम सिंपल लगते हैं, तो हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम मैसेज हमने प्रिंट कराया एरिया ऑफ सर्किल एरिया, तो ये आंसर शो हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन 3 प्रोग्राम्स की, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में